Hello friends, how are you? I hope you will be fine staying at home during this pandemic and today we'll read 8th chapter of Beehive book for the students of ninth class and its writer is Santosh Yadav and we have already covered 5 para of this lesson, this story, and in these 5 paras we have come to know that Santosh Yadav was born in Zoniavas village in Rewari district and when Santosh mother was expecting Santosh, at that time a holy man came over there and he blessed the family, he blessed the Santosh mother that she would give birth to a male child. But at that time the holy man was very much surprised when the Santosh grandmother who was standing beside her daughter-in-law over there. She said that we don't want a male child, we want a girl. And the holy man also at that time was also surprised, but he although he gave the required or desired blessing and went away there. And as it was decided, Santosh was born, and Santosh was very much different from other girls of the village. She started wearing shorts and she got admission in a village school. And when she grew up, then she decided that she had to change the system. She had to oppose or raise her voice against the discrimination. And then when she turned 14, then at that time most of the village girls got married. But and her parents were also pressurizing her for getting married, but that was the last option for Santosh Yadav, and she asked her parents very clearly that first of all I want to complete my higher studies. After that I will think about that, and if you don't allow me to go for my higher studies, I will never marry. Okay, so far we have covered. And then she got admission in Delhi school. After that she went to Jaipur in Maharani College, and there she saw some mountaineers and some shepherds who were grazing their goats or animals over there, and they would go up on the mountain. And in this way her curiosity also got stimulated and she decided to go for mountaineering. Okay, so we'll start from the sixth para. Okay, so let's start. Then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course at Uttarakashi Nehru Institute of Mountaineering. आफ्टर दैट जो संतोष यादव उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और डिटरमिनेंट का मतलब होता है रेजोल्यूट गर्ल। रेजोल्यूट का मतलब होता है जिसने बहुत ही दृढ़ निश्चय कर लिया हो, तो उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट गर्ल। और वो अपना मनी को सेव किया और उसने अपने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में अपने आप को एनरोल किया इस कोर्स के लिए, यानी कि जो माउंटेनरिंग के लिए इंस्टीट्यूट थी है। My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May. और कॉलेज के अंदर जो इसका सेमेस्टर था, वो सेमेस्टर जयपुर के अंदर जो कॉलेज जहाँ मारिन कॉलेज में ये पढ़ रही थी, वहाँ पर ये सेमेस्टर अप्रैल में एंड होना था, लेकिन ये 19th मई को ही एंड हो गया। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और इसे 21st को उसी मंथ यानी 21 मई को जो था 21 को वहाँ पर इनको पहुँचना था। ठीक है, तो 21 को ही वहाँ पर इनको पहुँचना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए घर ना जा कर के इंस्टेड आई हैड स्टेट फॉर द ट्रेनिंग, ये सीधे अपने ट्रेनिंग पे चले जाती हैं। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन
आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। और उन्होंने एक अलग से लेटर लिखा अपने फादर को अपोलॉजी के लिए। अपोलॉजी का लेटर होता है माफ़ी मांगने के लिए। अपोलॉजी का लेटर लिखा अपने फादर को कि जिनकी बिना परमिशन के वो उत्तरकाशी में जिन्होंने अपने आप को एनरोल कर लिया था, उस लिए एक अपोलॉजी का लेटर अपने फादर को लिखा। देर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। उसके बाद संतोष एवरी ईयर एक्सपेडिशन पे जाती थी। एक्सपेडिशन होता है अभियान, जो माउंटेनरिंग का जो इसने जो चलाया था कैंपेन, उसके लिए जाती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। और क्लाइंबिंग स्किल्स जो उसकी थी वो धीरे धीरे, यानी कि बहुत जल्दी से, रैपिडली का मतलब वेरी फास्ट मैच्योर हो रही थी। एंड ऑल्सो शी डिवेल्प्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। और धीरे धीरे उसने कहा कि काफ़ी हद तक कोल्ड और एल्टीट्यूड, ऊंचाई के प्रति भी उसने रेजिस्टेंस को जो है रिमार्केबल डेवलप कर लिया था। कहने का मतलब ऊंचाई के ऊपर भी वो, ऊंचाई से उसे डर नहीं लगता था और ठंड को भी वो सहन कर सकती थी। इन दिस वे शी गॉट फिजिकल ड्यूरेबिलिटी कैपेबिलिटी equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness. She proved herself repeatedly। और आयरन विल के साथ में, आयरन विल होता है व्हेन यू आर रेजोल्यूट एंड व्हेन यू आर नॉट गिविंग इन, व्हेन यू आर नॉट प्लानिंग टू गिव इन वेरी इजीली, दैट वुड बी आयरन विल। इसके आयरन विल के साथ में, यानी कि अपनी आयरन विल के साथ में, अपनी कठोर इच्छा शक्ति के साथ में। और फिजिकल एंड्योरेंस, फिजिकल एंड्योरेंस होता है जो फिजिकल टॉलरेंस है इनकी, फिजिकल टॉलरेंस और अमेजिंग मेंटल टफनेस के साथ में अब रिपीटेडली मैंने होता लगातार अपने आप को इन्होंने प्रूव किया। द कल्मिनेशन ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992। और कल्मिनेशन का मतलब रिजल्ट मान लो, फ्रूट मान लो, और इनके हार्ड वर्क और सिंसियरिटी का जो परिणाम है, जो फल है, वो इनको 1992 में मिला। जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड शाइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ़ शी कुड जॉइन दैम। और वो सिर्फ उस घटना की 4 साल बाद में ही इनको ये मिल गया था उसका फ्रूट। और वो घटना कब थी? जब उसने बड़े शर्माते हुए शायली ढंग से जो अरावली के माउंटेनियर्स थे उनसे पूछा था कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती थी। एक तो वो घटना थी व्हेन शी वाज वेरी मच शी वाज ए शाई गर्ल एंड शी आस्क्ड द माउंटेनियर्स इफ शी कुड ज्वाइन देम। ओके, बट आफ्टर दैट, just after 4 years of that incident, she was able to climb the hills very easily. And you know what happened after that? At barely 20 years of age, और मुश्किल से 20 years old थी उस समय संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। और संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को स्केल किया उस समय जब 20 ईयर्स इनकी मुश्किल से एज थी। और इस तरीके से ये वर्ल्ड की सबसे छोटी उम्र की महिला बन जाती हैं इस कार्य को करने वाली, अंजाम देने वाली। फीट माने होता है कार्य, टास्क। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। इनकी जो क्लाइंबिंग स्किल्स थी, फिजिकल फिटनेस थी और जो मेंटल स्ट्रेंथ थी, इससे इनके सीनियर्स काफ़ी इम्प्रेस होते थे। और उनकी दूसरों के प्रति जो चिंता थी, कंसर्न था, और साथ मिलकर काम करने की जो टीम वर्क का जो इनकी डिज़ायर थी, उससे कहता है कि इनके जो साथी जो क्लाइंबर्स थे उनके दिलों में एक विशेष जगह इन्होंने बना ली थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ कॉल। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। और 1992 के दौरान, एवरेस्ट मिशन के दौरान, संतोष यादव ने एक विशेष स्पेशल केयर
जो है प्रोवाइड की एक क्लाइंबर को, क्लाइंबर होता है माउंटेन पे चढ़ने वाला, उस क्लाइंबर को एक स्पेशल केयर उन्होंने प्रोवाइड की, जो कि साउथ कर्नल एक चोटी है वहाँ पर ये मरा हुआ पड़ा था, यानी कि वो बचा नहीं पाए उसे हालांकि, लेकिन उसकी हेल्प की थी। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, और वो अनफॉर्चुनेटली उनको बचा नहीं पाई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, लेकिन हाउएवर का मतलब होता है किंतु, किंतु वो जो एक दूसरे क्लाइंबर थे मोहन सिंह, उसको वो बचाने में कामयाब हो जाती हैं। हु वुड हैव मैट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, और उनकी डेथ हो जाती है अगर उनके साथ में संतोष यादव ऑक्सीजन को शेयर ना करती। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them, और 12 मंथ्स के अंदर ही संतोष ने अपने आप को इंडो नेपलीज वीमेन एक्सपेडिशन के एक मेंबर के रूप में पाया। नेपलीज का मतलब नेपाली, भारतीय और नेपाली महिलाओं का जो एक एक्सपेडिशन था, अभियान था उस पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों का, उसके अंदर अपने आप उसका एक मेंबर पाती है अपने आप को। ठीक है, विद इन 12 मंथ्स, यानी विद इन 12 मंथ्स शी प्रिपेयर्ड अगेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। They had invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Mount Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. देखिए, उसने उसी समय जो है सेकंड टाइम भी स्केल किया माउंट एवरेस्ट को, चढ़ाई की, और इस तरीके से एक रिकॉर्ड उन्होंने सेट किया कि एकमात्र महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को ट्वाइस स्केल किया हो, 2 बार स्केल किया हो, इस तरीके का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, और अपने लिए और इंडिया के लिए, अपने देश के लिए माउंटेनियरिंग के इतिहास में एक यूनिक प्लेस उन्होंने अपने लिए बना लिया, एक विशेष अनूठा विशेष स्थान बना लिया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padam Shri, और उनकी इस अचीवमेंट्स के पहचान के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने उनको नेशन का जो टॉप ऑनर्स हैं, राष्ट्र के जो टॉप सर्वोच्च जो ऑनर्स हैं, पद्म श्री से उनको सम्मानित किया। बेस्टोड अपॉन का मतलब होता है दे रेस्पेक्टेड हर विद दैट अवार्ड। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." जब संतोष यादव वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर थी, यानी कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर थी, तो उस समय संतोष यादव ने कहा था कि मुझे उस मोमेंट में डूबने के लिए कुछ समय लगा, क्योंकि वो एक ग्रेट मोमेंट था और उस मोमेंट को फील करने में, रियलाइज़ करने में टाइम लगा। फिर उन्होंने इंडियन जो ट्राइकलर था, अपना ट्राइकलर है अपना जो तिरंगा झंडा है भारतीय, उसको उन्होंने अनफर्ल किया, उसको वहाँ पर फहराया, और उन्होंने संसार की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर इसको सीधा खड़ा किया, अपने हाथ में पकड़ा इसे, इंडियन फ्लैग को, ट्राइकलर को। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की सबसे ऊंची चोटी के ऊपर इंडियन फ्लैग अब फ्लाई कर रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, और ये वास्तव में एक स्पिरिचुअल मोमेंट था। स्पिरिचुअल का मतलब दैट इज़ कनेक्टेड विद योर सोल, तो स्पिरिचुअल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और एक इंडियन के रूप में मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट,
Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. So तो फर्वेंट का मतलब होता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स, और एक स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर एनवायरमेंटलिस्ट होने के भी वो हैं। संतोष यादव एक पर्यावरण के सच्चे पर्यावरणविद हैं। कहने का मतलब पर्यावरण के प्रति अपनी कंसर्न रखने वाली महिला है, जो कि सिंसियरली इसके बारे में केयर करती हैं, पर्यावरण के बारे में। संतोष यादव ने क्या किया कि 500 किलोग्राम जो हिमालयाज से उन्होंने कचरा वहाँ से नीचे लेके आई, जो वहाँ पर पड़ा था ऊपर, वही कचरे को 500 किलोग्राम कचरे को वहाँ से लेके आई, ठीक है, ताकि वहाँ पर साफ सफाई हो सके, उसको क्लीन किया जा सके। सो दैट्स द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। ओके, एंड रीच फॉर द टॉप। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आपको मेरे वीडियोज़ अगर अच्छे लगे हों तो इनको शेयर कर दी, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड शेयर माय वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।